Hello students, good morning everybody. Today we are going to do for standard 5 English 2 grammar chapter 3 part 1 subject and predicate. Okay. In the previous chapter we have studied about the sentences. Okay, what is a sentence? A sentence is a group of words that make a कंप्लीट सेंस. उसका मतलब क्या है? जो सेंटेंस मीनिंगफुल होता है, हमको समझ में आए वैसे वर्ड्स को अरेंज किया हुआ होता है, दैट इज कॉल्ड द सेंटेंस. ओके, एंड देन वी हैव स्टडीड अबाउट द काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस. राइट, व्हाट आर द काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस? 4 काइंड्स. फर्स्ट वन इज स्टेटमेंट, दैट इज डिक्लेरेटिव, एसर्टिव. सेकेंड इंपरेटिव. थर्ड interrogative. Fourth exclamation. Okay, so 4 kinds of sentences we have studied and we have done all the exercise of lesson number 2. Today we are going to do subject and predicate. Now, what is the subject and what is the predicate? Okay, subject. Sentence has 2 parts, subject and predicate. Sentence has 2 parts, subject and predicate. What is a subject? Subject always has a noun. Subject is always a noun. And pronoun भी हो सकता. Noun क्या है? Living word. Pronoun यानी he, she, it, they, we, I. This is called the pronoun. Noun, you know, naming word. किसी का भी नाम हो सकता है. Student, children, mother, father, teacher, Kamla, Vimla, like. Okay, that is the noun. Okay, so subject is always a noun or pronoun. Or सिंपल सेंटेंस यानी स्टेटमेंट में सब्जेक्ट ऑलवेज कम्स फर्स्ट. ओके, और सब्जेक्ट में 2 वर्ड्स हो सकते हैं, द स्टूडेंट, द टीचर, ऐसा हो सकता. प्रेडिकेट क्या है? दैट आई विल एक्सप्लेन. और दूसरी बात, सब्जेक्ट, हाउ टू नो द सब्जेक्ट. पहले एक सेंटेंस दिया गया है, उस सेंटेंस में सब्जेक्ट को पहचानना है, तो कैसे पहचानोगे? दैट आई विल एक्सप्लेन. फर्स्ट सेंटेंस, she is a singer. Subject, sentence, this is a sentence. Sentence किसके बारे में है? She. तो जिसके बारे में सेंटेंस है, that is called the subject. That is called the subject. Subject क्या करता है? That is the predicate. That is the predicate. जिसके बारे में सेंटेंस है, दैट इज द सब्जेक्ट. सब्जेक्ट क्या करता है? दैट इज द प्रेडिकेट. और प्रेडिकेट में ऑलवेज वर्ब आएगा. प्रेडिकेट में क्या आएगा? एक वर्ब तो होगा ही होगा. ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस मच. ओके, सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट मेक्स अ सेंटेंस. एक सेंटेंस में 2 पार्ट्स होते हैं, वन इज सब्जेक्ट, अनदर इज प्रेडिकेट. सब्जेक्ट कैसे पहचानना है? पूरा सेंटेंस को पढ़ना है. सेंटेंस जिसके बारे में है, दैट इज कॉल्ड द सब्जेक्ट. एंड सब्जेक्ट क्या करता है? दैट इज द प्रेडिकेट. ओके, नाउ इन सिंपल सेंटेंस, वैसे सेंटेंस है उसमें सब्जेक्ट आगे आएगा, बट इन सेंटेंस लाइक इंपरेटिव, दैट इज कमांड वाला सेंटेंस है, उसमें सब्जेक्ट नहीं होगा. I will explain you how to see. Keep quiet. This is a sentence. Keep quiet. This is a sentence, right? लेकिन इसमें कोई सब्जेक्ट नहीं है, तो आपको you have to understand that you is the subject and this is the predicate. You is the subject. In
sentence like command and order, if there is no subject is given, you have to understand that there is you is that. You is the subject and बाकी सब क्या है? Predicate. Okay. Now this you have to remember. And third one, in interrogative sentence, that is in question wala sentence, the subject may be at the back. Where is your mother? Where is your mother? यहाँ पर आपको देखना है कि सेंटेंस किसके बारे में है? मदर. तो मदर इज द सब्जेक्ट, वेयर इज योर जो है दैट इज द प्रेडिकेट. ओके, नाउ we will come to lesson number 3, subject and predicate, page number 11. I will read out this. We know that a sentence is a group of words that makes complete sense, that I have explained you. We'll see the example. सुहाना is a good student. तो सेंटेंस किसके बारे में है? सुहाना. तो सुहाना इज द सब्जेक्ट. ओके, इज अ गुड स्टूडेंट. यहाँ पर इज अ वर्ब, तो इज अ गुड स्टूडेंट पूरा क्या है? प्रेडिकेट है. दिस इज व्हाट इज रिटन हियर. यू कैन सी हियर. ओके, नाउ सुहाना इज अ सब्जेक्ट बिकॉज द सेंटेंस इज अबाउट सुहाना. The word is a good student is the predicate because this part tells something about the subject सुहाना. ये क्या बता रहा है कि सुहाना के बारे में बता रहा है, इसलिए प्रेडिकेट है. यहाँ पर डेफिनेशन दिया है. द पार्ट ऑफ अ सेंटेंस विच टेल्स अस what the sentence is about is the subject. The part of a sentence which tells something about the subject is the predicate. Okay? I hope you have understood this much. आगे थोड़ा ज़्यादा एग्जाम्पल्स है वो हम करते. two columns are given, subject and predicate. Birds fly. तो सेंटेंस किसके बारे में है? बर्ड्स के बारे में. बर्ड्स क्या करते हैं? फ्लाई. तो फ्लाई इज द प्रेडिकेट. नाउ द बर्ड्स फ्लू अवे. तो सभी किसके बारे में है? द बर्ड्स. टू यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर दो वर्ड्स, यानी सब्जेक्ट में दो वर्ड्स आ सकते हैं. फ्लू अवे, बर्ड्स ने क्या किया? फ्लू अवे. दिस इज द प्रेडिकेट. नाउ द टू बेबीज वेर फीलिंग स्कैर्ड. द टू बेबीज, यहाँ पर 3 वर्ड दिया गया है, यानी एक से ज़्यादा वर्ड सब्जेक्ट में आ सकता है. दिस यू हैव टू अंडरस्टैंड. ओके, टू बेबीज वेर फीलिंग टायर्ड. टू बेबीज सब्जेक्ट, यानी सेंटेंस जो है टू बेबीज के बारे में है, तो दिस इज अ सब्जेक्ट. क्या करते हैं? वेर फीलिंग स्कैर्ड, डरते हैं. वेर फीलिंग टायर्ड, तो दिस इज द प्रेडिकेट. ओके, एज वी कैन सी, the subject and the predicate can be made up of one word, as in example 1 one word, example 2 में 2 word है, example 3 में 3 words. वही मैंने आपको समझाया था. The order of the subject and the predicate. Okay, usually the subject comes before the predicate, but often for emphasis the predicate can come before the subject. यहाँ पर ऐसा भी आ सकता है. That you have to understand. Example, in that jungle lived a lion. ऐसा भी लिख सकते हैं. तो आपको क्या करना है? पूरा सेंटेंस को पढ़ना है. सेंटेंस किसके बारे में है, that you have to know. Then you have to decide कि सेंटेंस किसके बारे में है. तो यहाँ पर सेंटेंस लायन के बारे में है, इसीलिए लायन क्या है? सब्जेक्ट है. बाकी सब क्या है? प्रेडिकेट है. ओके, ऐसे भी सेंटेंस आ सकते हैं टू कंफ्यूज यू. ओके, नाउ अगेन इन इंपरेटिव सेंटेंस वो मैंने आपको समझा दिया था. गो टू स्लीप. गो टू स्लीप किसको बोल रहे हैं? नहीं, वी डोंट नो. यहाँ पर कोई सब्जेक्ट नहीं है, तो यू इज द सब्जेक्ट. ओके, गेट अप फ्रॉम द बेड किसको बोल रहे हैं? यू. तो यू गेट अप फ्रॉम द बेड. यहाँ पर दोनों में यू इज द सब्जेक्ट बिकॉज दिस इज द इंपरेटिव सेंटेंस.
ऑर्डर वाला सेंटेंस, कमांड वाला सेंटेंस. We will pass on to page number 12. The sentences actually mean you go to sleep. मैंने आपको यही बोला था. You get up from the bed. तो यहाँ पर दोनों में सब्जेक्ट कौन सा हो गया? You हो गया. वहाँ पर आपको दिया नहीं होगा, लिखा हुआ नहीं होगा. But you have to understand you is the subject. Now we will do the exercise. Okay. Identify the subject and the predicate in the given sentences. आपको यहाँ पर पहचानना है कि सब्जेक्ट कौन सा है, प्रेडिकेट कौन सा है. एग्जाम्पल दिया है that you can read. Now we will pass on to the exercise directly. Fatima and Asim are good friends. सेंटेंस किसके बारे में है? दो जन के बारे में, फातिमा एंड असीम. तो दिस टू आर द सब्जेक्ट. क्या क्या है? फातिमा एंड असीम पूरा सब्जेक्ट है. और ये दो क्या करते हैं? आर गुड फ्रेंड्स. तो आर गुड फ्रेंड्स पूरा प्रेडिकेट है. आपको सब्जेक्ट के ऊपर सब्जेक्ट लिखना है, प्रेडिकेट के ऊपर प्रेडिकेट लिखना है और वैसे ही अंडरलाइन कर देना है. स्क्रीनशॉट ले लेना so that you can understand and you can easily write it down in your notebook. Now, see. Across the river is the small village. यहाँ पर उल्टा दिया है. सेंटेंस किसके बारे में है? The small village. ओके. तो the small village is the subject. बाकी सब क्या है? प्रेडिकेट है. तो वैसे आपको करना है. The children of the junior classes have a holiday tomorrow. तो सेंटेंस पूरा है. The children of the junior classes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 words are here. तो सब्जेक्ट पूरा 6 वर्ड का है. ओके. Have a holiday tomorrow. Predicate. Stand in a queue. यहाँ पर आप देख सकते हो कोई भी सब्जेक्ट नहीं दिया है, ऑर्डर दिया है. स्टैंड इन ए क्यू पूरा प्रेडिकेट है. तो इसका सब्जेक्ट क्या होगा? यस, यू. यू इज द सब्जेक्ट. विशाल इज एब्सेंट टुडे. एकदम वन वर्ड का सब्जेक्ट. सेंटेंस किसके बारे में है? विशाल. तो विशाल इज द सब्जेक्ट, बाकी सब प्रेडिकेट. मोहन एंड हिज टीममेट्स have won the match. मोहन एंड his teammates के बारे में पूरा सेंटेंस है. तो पूरा क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा. Have won the match is the predicate. Okay. Now, my dream is to be a doctor. तो यहाँ पर 2 वर्ड वाला सब्जेक्ट है. My dream मेरा सपना, मेरा my dream सब्जेक्ट है. is to be a doctor predicate है, क्योंकि predicate में always verb आएगा. यहाँ पर is से होगा. Most of my classmates stay in Noida. क्या है? क्लासमेट्स के बारे में है सेंटेंस. तो most of my classmates पूरा सब्जेक्ट है. stay in Noida क्या है? प्रेडिकेट है. You cannot drink water inside the class. Very small subject, you. Okay, you is the subject, बाकी सब predicate. Shalini is unwell. किसके बारे में सेंटेंस है? शालिनी के बारे में. तो शालिनी is the subject. Is unwell is the predicate. Okay, now this much is done. Now we will pass on to exercise B. Match the column है. मैंने आंसर लिख दिया है, बट आई विल एक्सप्लेन यू बाय रीडिंग. यहाँ पर सब्जेक्ट दे दिया है, प्रेडिकेट के साथ मैच करना है. वीना कैन स्पीक फ्रेंच. वीना कैन स्पीक फ्रेंच. इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना. माई हॉबी इज रीडिंग. ओके. इट इज रेनिंग हैवीली. Okay, I am going to Kashmir for my vacation. I के साथ always am आएगा. Present tense में am आएगा. तो I am going to Kashmir for my vacation. Okay. Now, 5th,
My favorite food is Chinese. Okay. My birthday is in June. I had sandwich for breakfast. Mohan lives in Kolkata. Meena has gone to school. Payal was upset with her result. आपको पूरा क्या करना है, ऐसे मैच नहीं करना है, पूरा सामने सामने आंसर लिख देना है. बुक में ऐसा लिख दो, मैंने जैसे लिखा है वैसा, और नोटबुक में इसके सामने उसका डैश करके आंसर लिख देना है. ओके, तो पेज नंबर 12 इज ओवर एंड इन द नेक्स्ट सेशन we will do the remaining part. Okay, till then take care of yourself. Thank you very much.